السلام علیکم، بی ٹی وی نیوز کے ساتھ میں ہوں ندا ارشد۔ بلیٹن کا آغاز کرنے سے قبل ایک نظر نیوز ہیڈ لائنز پر۔ کراچی میں 3 دن کی شدید گرمی کے بعد بادلوں کو رحم آ گیا۔ موسم میں یکدم تبدیلی، شہر میں کالی گھٹائیں چھا گئیں۔ مٹی اور گرد و غبار کا طوفان، ملیر، گڈاپ، اورنگی ٹاؤن اور سرجانی سمیت مختلف علاقوں میں تیز آندھی کے ساتھ بارش، گرمی کے ستائے شہریوں کے چہرے کھل اٹھے۔ وزیر اعظم کو ملنے والے نامعلوم میسج کے بعد رنگ روڈ منصوبے میں تحقیقات کا حکم دیا گیا۔ رنگ روڈ منصوبے میں اربوں روپے کھایا نہیں بلکہ بچایا گیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے واضح کر دیا، کہتے ہیں پی ٹی آئی دور میں رنگ روڈ جیسے معاملات پر کھل کر بات ہوتی ہے۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی حکومت ہوتی تو انکوائری نہ کرتی۔ منصوبے کی رپورٹ میں غلام سرور اور زلفی بخاری کا کوئی ذکر نہیں۔ غزہ کی فضاؤں میں آگ کے شعلے اور دھوئیں کے بادل، اسرائیل کی ریاستی دہشت گردی دوسرے ہفتے میں داخل۔ مزید 42 فلسطینی شہید، شہادتیں 212 سے تجاوز کر گئیں۔ 61 بچے اور 36 خواتین بھی شامل، 1300 سے زائد زخمی۔ اسرائیلی فورسز نے غزہ میں واحد کووڈ لیبارٹری، قطری امدادی ادارے کے آفس کو بھی نشانہ بنایا۔ فلسطین میں صہیونی جارحیت کے خلاف دنیا بھر میں احتجاج جاری۔ انڈونیشیا میں لاکھوں افراد کی ریلی، کیلیفورنیا میں آئس کریم فروخت کرنے والی کا فلسطینیوں سے یکجہتی کا اظہار۔ نیو یارک، لندن، برلن، ملیشیا، نیوزی لینڈ، کینیڈا، ساؤتھ افریقہ سمیت دنیا بھر میں ریلیاں، مظاہرے۔ عالمی امن کے نام نہاد ٹھیکیداروں کا دوہرا معیار، امریکہ نے اسرائیل کے لیے $735 ملین اسلحہ فروخت کی منظوری دے دی۔ امریکی محکمہ خارجہ کا صحافیوں کے سوال پر تبصرے سے گریز، بائیڈن انتظامیہ کی جانب سے صہیونیوں کی بے جا حمایت پر 28 سینیٹرز بھی میدان میں آ گئے، فلسطین پر مسلط جنگ رکوانے کا مطالبہ۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سفارتی مشن پر، شاہ محمود قریشی کی انقرہ میں ترک وزارت خارجہ آمد، ترک ہم منصب سے ملاقات میں فلسطین میں امن و امان کی صورتحال پر گفتگو۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا، غزہ میں اسرائیلی حملوں سے امت مسلمہ افسردہ ہے۔ وزیر خارجہ کا اسرائیلی جارحیت کے خلاف اقوام متحدہ میں مل کر آواز اٹھانے کا فیصلہ۔ وفاقی کابینہ نے مظلوم فلسطینیوں کے لیے امداد بھیجنے کا فیصلہ کر لیا۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری کہتے ہیں، فلسطین کے معاملے پر پاکستان نے واضح موقف اپنایا۔ فلسطینی قیادت نے پاکستان کے کردار پر شکریہ ادا کیا۔ فلسطین میں اسرائیل نے بربریت کا بازار گرم کر رکھا ہے، اسرائیل کے فلسطین پر مظالم روکنے والا کوئی نہیں۔ صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف کی میڈیا سے گفتگو، کہا موجودہ حکومت نے ملک کو تباہ کر دیا ہے۔ موجودہ حکومت وسائل پیدا کرنے میں ناکام رہی، پاکستانی معیشت کا پہیہ رک چکا ہے، ہائر ایجوکیشن کمیشن تباہی سے دوچار ہے۔ لیگی رہنما احسن اقبال کی پریس کانفرنس، مفتاح اسماعیل بولے، موجودہ حکومت نے ناجائز طریقے سے انٹرسٹ ریٹ بڑھایا، عمران خان کی حکومت نے $1 کا قرض واپس نہیں کیا۔ نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کا اجلاس، تعلیمی اداروں سے متعلق فیصلہ، بین الصوبائی وزرائے تعلیم کانفرنس میں کیے جانے پر اتفاق۔ ملک بھر میں بورڈ امتحانات ہر صورت ہوں گے، این سی او سی کو بریفنگ، 9ویں سے 12ویں تک کلاسز پہلے مرحلے میں کھولنے کی تجویز۔ بلوچستان بورڈ نے ایف اے اور ایف ایس سی کے امتحانات ملتوی کر دیے، اعلامیہ کے مطابق امتحانات کورونا کی تیسری لہر کے باعث ملتوی کیے گئے، نئی تاریخ کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ بلوچستان میں ایف اے اور ایف ایس سی کے امتحانات 25 مئی سے شروع ہونے تھے۔ پاکستان میں کرونا وائرس کے وار ایک مرتبہ پھر بڑھ گئے، 24 گھنٹوں میں مزید 135 زندگیاں لے گیا، 2566 نئے کیسز رپورٹ، ملک میں کرونا مریض 8,82,928 ہو گئے۔ اسسٹنٹ کمشنر پشاور شمس الاسلام کرونا کے باعث انتقال کر گئے۔ معاون خصوصی صحت ڈاکٹر فیصل سلطان نے کہا ہے کہ 3.8 ملین سے زائد کرونا ویکسین تاحال استعمال کی جا چکی ہیں، 4,329 میں معمولی اثرات کی شکایات ملی، 90% شکایات انجیکشن کی جگہ پر درد یا بخار کی تھیں، 6 قابل تشویش واقعات محض اتفاق تھے جن کا ویکسین سے تعلق نہ تھا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا آغاز کریں گے اس خبر کے ساتھ۔ قومی اسمبلی میں ہونے والے اجلاس میں فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ اسرائیلی جارحیت کی مذمت کی اور کرتا رہے گا۔ قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے وزیر خارجہ نے بتایا کہ وہ آج ترکی روانہ ہو رہے ہیں، فلسطین اور سوڈان کے وزیر خارجہ بھی ترکی پہنچیں گے۔ چاروں وزرائے خارجہ نیو یارک جا کر اقوام متحدہ سے جنرل اسمبلی اجلاس بلانے کا مطالبہ کریں گے۔ فلسطین لہو لہو، ہر طرف لاشیں، آہیں، سسکیاں، چیخ و پکار، ملبے کے ڈھیر،
فلسطین پر اسرائیلی جارحیت دوسرے ہفتے میں داخل، غزہ پر اب تک کی خوفناک بمباری، مزید 42 فلسطینی شہید، شہادتیں 200 سے زائد ہو گئیں، 58 بچے اور 35 خواتین بھی شامل۔ غزہ جل رہا ہے، جگہ جگہ خون، آہیں، سسکیاں، چیخو پکار۔ غزہ جل رہا ہے، بجلی کا نظام درہم برہم، عمارتیں ملبے کا ڈھیر۔ ہزاروں فلسطینی نقل و مکانی پر مجبور کہ غزہ جل رہا ہے۔ مظلوم فلسطینیوں کی آہ و بکا، ہر طرف اللہ اکبر کی صدائیں کہ غزہ جل رہا ہے۔ مائیں اپنے لگتے جگر، بیٹے اپنے باپ کے جنازے اٹھائے پھر رہے ہیں۔ مظلوم فلسطینی عالمی برادری کو پکار رہے ہیں کہ غزہ جل رہا ہے۔ قومی اسمبلی میں فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کی قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی گئی۔ فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کی قرارداد وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی جانب سے پیش کی گئی۔ قرارداد میں فلسطینی عوام پر اسرائیلی مظالم کی شدید مذمت کی گئی ہے۔ قرارداد میں فلسطینیوں کو حق خود ارادیت دینے اور اسرائیل پر جنگی جرائم کے تحت مقدمات چلانے کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے۔ غزہ میں اسرائیل کی ریاستی دہشت گردی دوسرے ہفتے میں داخل ہو گئی۔ پیر کو غزہ پر اب تک سب سے خوفناک بمباری کی گئی۔ مزید 40 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے۔ شہداء کی مجموعی تعداد 200 سے بڑھ گئی۔ شہداء میں 59 بچے اور 35 خواتین بھی شامل ہیں۔ 1300 سے زائد زخمی اسپتالوں میں زیر علاج ہیں۔ اسرائیلی فضائیہ نے بمباری کر کے اسپتال جانے والی سڑکیں بھی تباہ کر دیں۔ مظلوم فلسطینیوں کا شہر غزہ ایک بار پھر زوردار دھماکوں سے گونجتا رہا۔ مسلسل 10 منٹ تک جاری رہنے والے حالیہ فضائی حملوں میں غزہ شہر شمال سے جنوب تک لرزتا رہا۔ تازہ ترین اسرائیلی حملے گزشتہ ہفتے ہونے والے حملوں کے مقابلے میں زیادہ خطرناک اور وسیع پیمانے پر کیے گئے۔ اسرائیلی فورسز نے حماس کے ٹھکانوں سمیت رہائشی و سرکاری عمارتوں کو نشانہ بنایا۔ زخمی فلسطینیوں کا علاج معالجہ روکنے کے لیے اسپتال جانے والے راستوں پر بھی بم برسا دیے گئے۔ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا کہ اس نے غزہ میں حماس کے 9 کمانڈروں کے گھروں پر حملے کیے۔ مقامی میڈیا رپورٹس کے مطابق اسرائیل کے تازہ ترین حملوں میں مرکزی ساحلی سڑک، سیکیورٹی کمپاؤنڈز اور کھلی جگہوں کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ بجلی کی تقسیم کار کمپنی نے بتایا کہ اسرائیل کے فضائی حملوں سے غزہ کے بجلی گھر سے جنوبی غزہ شہر کے بڑے حصوں تک بجلی فراہم کرنے والی ایک لائن کو نقصان پہنچایا ہے۔ امریکہ نے اسرائیل سے غزہ میں میڈیا ہاؤسز کو نشانہ بنانے پر وضاحت مانگ لی۔ امریکی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ میڈیا دفاتر والی عمارت میں حماس کی موجودگی کا کوئی ثبوت سامنے نہیں آیا۔ اسرائیل اس حملے کا جواز بتائے، اس کی جانب سے فراہم کردہ شواہد میں حماس کی موجودگی کی کوئی ٹھوس وجہ نہیں بتائی گئی۔ راولپنڈی رنگ روڈ اسکینڈل میں الزامات پر وزیر اعظم کے معاون خصوصی زلفی بخاری نے استعفیٰ دے دیا۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر زلفی بخاری نے کہا انہوں نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے، وزیر اعظم کے ویژن کے مطابق مثال قائم کرنا چاہتے ہیں، الزامات سے بری ہونے تک وہ عہدے سے مستعفی ہی رہیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی اوگرا کی تجویز مسترد کر دی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں 21 مئی تک برقرار رہیں گی۔ وزیر مملکت فاروق حبیب نے کہا وزیر اعظم قیمتوں میں اضافے کا بوجھ عوام پر ڈالنا نہیں چاہتے۔ فیصلے سے حکومتی خزانے کو 2.77 ارب روپے کا بوجھ برداشت کرنا پڑے گا۔ وزیر اعظم نے 30 اپریل کو بھی قیمتوں میں اضافہ نہیں کیا تھا۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے کہا ہے کہ اسرائیلی فورسز نے فلسطین میں سینکڑوں عمارتیں گرا دیں، ماؤں، بہنوں اور بچوں کو شہید کیا گیا۔ اگر کوئی اسلامی ملک ایسا کرتا تو جنگ مسلط کر دی جاتی۔ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے نون لیگ رہنما نے کہا کہ سب سے بڑا امتحان پاکستان اور اسلامی دنیا کا ہے۔ اسلامی ممالک کی قیادت وقت ضائع کیے بغیر اکٹھی ہو، OIC اور عرب لیگ کا اجلاس بلایا جائے۔ پاکستان پیپلز پارٹی رکن صوبائی اسمبلی سندھ یوسف مرتضی بلوچ نے سابق ضلعی چیئرمین سلمان عبداللہ مراد سے ملاقات کی۔ کرونا وبا کے باعث مزید 135 افراد جاں بحق ہو گئے، جبکہ فعال کیسز کی تعداد میں گزشتہ روز کے مقابلے کمی واقع ہوئی ہے۔
नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 29,801 कोरोना टेस्ट किए गए, जिसके बाद मजमूई कोविड टेस्ट्स की तादाद 12,51,056 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में मजीद 2,566 मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इस तरह पाकिस्तान में कोरोना के मुसद्दिका मरीजों की तादाद 8,82,928 हो गई है। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अब तक सिंध में 2,99,913, पंजाब में 3,28,775, खैबर पख्तूनख्वा में 1,27,224, इस्लामाबाद में 79,371, बलूचिस्तान में 23,931, आजाद कश्मीर में 18,286 और गिलगित बल्तिस्तान में 5,428 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई है। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इस वक्त मुल्क भर में कोरोना के फाल मरीजों की तादाद 67,665 है, जबकि 4,000 से ज्यादा मरीजों की हालत तशवीशनाक है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के मजीद 135 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अब इस वबा से जाँ बहक होने वाले अफराद की मजमूई तादाद 19,752 हो गई है। NCOC के मुताबिक कोरोना से एक दिन में 2,289 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जिसके बाद सेहतयाब होने वाले मरीजों की तादाद 7,95,511 हो गई है। शामिल करेंगे बैनुल-अक़वामी खबरें BTV इंटरनेशनल में। अमरीकी सदर जो बाइडन ने फ़लस्तीन और इसराइली क़यादत से जंग बंद करने और मसला बातचीत से हल करने का मुतालबा कर दिया। चीन ने अमरीका से इसराइली हमलों को रुकवाने के लिए अपना किरदार अदा करने का मुतालबा करते हुए कहा कि अमरीका को फ़लस्तीन के मसले के हल के लिए अपना हिस्सा डालना चाहिए। आलमी खबररसां इदारे के मुताबिक चीन के वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ज़ाओ लेजियान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इसराइल और फ़लस्तीन के माबैन 2014 के बाद से अब तक सबसे बड़ा तनाज़ा पैदा हुआ है, जिसके हल के लिए अमरीका को अपनी जिम्मेदारियां निभानी चाहिए। ज़ाओलिचिया ने मजीद कहा कि इसराइल को तहम्मुल से काम लेते हुए मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद, धमकियों और इश्तियाल अंगेजी का सिलसिला बंद करना चाहिए। फ़लस्तीन में मुतासरीन को इमदाद की अशद ज़रूरत है। इंसानी हमदर्दी के तहत तमाम मुमालिक मिलकर फ़लस्तीनी अवाम के दुखों का मदावा करें। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने फ़लस्तीन के लिए की गई काविशों का जिक्र करते हुए कहा कि चीन ने सलामती काउंसिल में 2 बार मशावरत की, जिसका मुसव्वदा भी तैयार है, जिसकी बुनियाद पर वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने 16 मई को सलामती काउंसिल में खुलकर इजहार ख्याल किया। 2 रियासती हल भी पेश किए। वाज़ेह रहे कि एक हफ्ते से गजा पर इसराइल के मुसलसल बमबारी के नतीजे में 200 से ज़ायद फ़लस्तीनी हलाक और सैकड़ों जख्मी हो चुके हैं। शामिल करेंगे कारोबारी दुनिया की खबरें BTV बिजनेस में। हुकूमत ने ताजिरों को टैक्स नेट में लाने के लिए एक और कोशिश करने का फैसला किया है। हुकूमत की जानिब से इस बार आइंदा बजट में इंतजामी तब्दीलियों और टैक्स की शरह में कमी जैसे इकदाम से ताजिरों को टैक्स नेट में लाने की कोशिश की जाएगी। वज़ारत खजाना के ज़राए के मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा ताजिरों को टैक्स के दायरे में लाने के लिए आइंदा माली साल में हर माह इन सार्फिन में 20 करोड़ रुपए के इनामात भी तकसीम किए जाएंगे, जो FBR से इलेक्ट्रॉनिकली तौर पर मुंसलिक ताजिरों से खरीदारी करेंगे। के रिटेलर्स की टॉप टायर ज़राए ने बताया कि वज़ीर खजाना के सफ़े अव्वल तारीफ और स्कोप को वसी करने जैसे इकदाम टैक्स नेट की वसअत के लिए अहम होंगे। 50,000 सेल्स पॉइंट्स की ऑनलाइन इंटीग्रेटिंग के अलावा सफ़े अव्वल के रिटेलर्स की तारीफ को वसअत देने से 50 से 70 अरब रुपए का इजाफी टैक्स हासिल हो सकेगा। रिटेलर्स ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने इस तजवीज़ पर गौर किया कि FBR के साथ मुंसलिक होने की जानिब हौसला अफजाई के लिए कम से कम टैक्स 1.5% से कम करके 1.25% कर दिया जाए। इसी तरह FMCG के लिए विद होल्डिंग टैक्स की शरह कम करके 0.25% करने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। 10 साल के दौरान चीन ने पाकिस्तान में 5 अरब 39 करोड़ 90 लाख डॉलर की बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी की। रवा माली साल में जुलाई तक मार्च के दौरान पाकिस्तान में 65 करोड़ 8 लाख डॉलर की सरमायाकारी के साथ चीन सर फहरिस्त रहा। सरमायाकारी बोर्ड BOI के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक चीन की जानिब से माली साल 2017 से 18 के दौरान सरमायाकारी का हजम 1 अरब 31 करोड़ 19 लाख डॉलर रहा, जबकि माली साल 2015 से 16 के दरमियान चीन के सरमायाकारों की तरफ से पाकिस्तान में 1 अरब 4 करोड़ 83 लाख की FDI की गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक माली साल 2010 से 11 में चीनी सरमायाकारों ने पाकिस्तान में 4 करोड़ 74 लाख डॉलर की बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी की थी। माली साल 2011 से 12 में चीन की पाकिस्तान में FDI का हजम 126.1 मिलियन डॉलर रहा। माली साल 2012 से 13 में चीन की FDI 90.6 मिलियन डॉलर रही थी, जो आइंदा माली साल 2013 से 14 के दौरान 685.8 मिलियन डॉलर तक जा पहुंची और माली साल
2014 से 15 में पाकिस्तान में चीन की बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी का हजम 340.8 मिलियन डॉलर रहा। आदादोशुमार के मुताबिक 2015 से 16 में चीन की FDI का हजम 1048.3 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया। माली साल 2016 से 17 के दौरान चीन के सरमायाकारों ने पाकिस्तान में 763.2 मिलियन डॉलर बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी की, जो माली साल 2017 से 18 के लिए 1311.9 मिलियन डॉलर तक बढ़ गई। रिपोर्ट के मुताबिक माली साल 2018 से 19 में चीन की FDI का हजम 130.8 मिलियन डॉलर रहा था, जो कि गुज़िश्ता माली साल 2019 से 20 के दौरान 844.1 मिलियन डॉलर तक बढ़ गया और जारी माली साल 2020 से 21 के पहले 9 माह के दौरान पाकिस्तान में 650.8 मिलियन डॉलर की बराह रास्त गैर मुल्की सरमाए के साथ चीन पहले नंबर पर है। शामिल करेंगे दुनिया भर से हैरान कर देने वाले हकाइक BTV इंफोटेनमेंट में। दुनिया का पहला 3 आंखों वाला बछड़ा बर्तानिया के इलाके वेल्स के फार्म में देखा गया, जिसने कई लोगों को गहरी सोच में मुब्तला कर दिया है। वेल्स के एक फार्म में जानवरों की डॉक्टर मार्लिन ह्यूज मुआयना की गर्ज से गईं तो उन्होंने 3 आंखों वाला बछड़ा देखा, जिसकी तस्वीर उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर अपलोड की। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इस बछड़े की उम्र 4 माह है, जो कि सेहतमंद है, जबकि ताहाल ये वाजे नहीं हो सका कि आया इस तीसरी इजाफी आंख से कुछ दिखाई देता है या नहीं। मार्लिन ह्यूज के मुताबिक बहैसियत डॉक्टर इस किस्म का जानवर उन्होंने अपनी जिंदगी में पहली मर्तबा देखा है। उनका कहना था कि बाज़ाहिर इसकी ये आंख बिल्कुल ठीक लगती है, लेकिन इसकी आंख में से किसी किस्म का मवाद खारिज हो रहा है, इसलिए ये जानना नामुमकिन है कि दरअसल इसकी आंख के अंदर हो क्या रहा है। शामिल करेंगे सेहत से मुतालिक खबरें BTV हेल्थ में। मौसम गर्मा के आते ही हर किसी का मनपसंद फल तरबूज भी वाफिर मिकदार में बाजारों में दस्तयाब। इस्तेमाल के सेहत पर बेशुमार फवाइद, देखिए इस रिपोर्ट में। तिबी और ग़िज़ाई माहिरीन के मुताबिक दौरान पानी की कमी दूर करने, मूड बेहतर, खुशगवार बनाने और बोझल तबीयत हल्की करने के लिए खुश जायका फल तरबूज का इस्तेमाल तजवीज़ किया जाता है, जिसके इस्तेमाल से सेहत पर बेशुमार फवाइद हासिल होते हैं। इस हरे और लाल फल के गूदे में 92% हिस्सा पानी का मौजूद होता है, जो कि गुर्दों और आंतों की सफाई के लिए निहायत मुफीद करार दिया जाता है। तरबूज में पानी की वाफिर मिकदार समेत मुतादिद कुदरती अज्जा जैसे कि विटामिन A, B6, C, पोटेशियम, लाइकोपीन और दीगर सेहत के लिए बुनियादी करार दिए जाने वाले अज्जा भी पाए जाते हैं, जबकि सेहत के लिए इस मुफीद फल की जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल के नतीजे में मनफी असरात भी मुरतब हो सकते हैं। तिबी माहिरीन के मुताबिक पानी इंसानी जिस्म के लिए बुनियादी जरूरत है, मगर जिस्म में पानी की वाफिर मिकदार भी मुजरे सेहत साबित होती है। जिस्म में पानी की मिकदार बढ़ जाने से सोडियम की सतह कम हो जाती है, जिसके नतीजे में सर चकराने समेत दीगर मसाइल पैदा हो सकते हैं। इसलिए तरबूज का ज्यादा मिकदार में इस्तेमाल करना जिसमें पानी की मिकदार को बढ़ा सकता है। पानी खारिज ना होने और ज्यादा दबाव के सबब खून का प्रेशर बढ़ जाता है, जिसके सबब टांगों में सूजन, थकावट, गुर्दों की कारकर्दगी मुतासर होने की शिकायत हो सकती है। शामिल करेंगे शोबिस के दुनिया का अहवाल BTV एंटरटेनमेंट में। अदाकारा माहिरा खान ने पाकिस्तानी फनकारों की भारत में पाबंदी को मायूस कुन करार दे दिया। पाकिस्तान की नामवर अदाकारा माहिरा खान ने पहली बार पाकिस्तानी फनकारों पर भारत में काम करने की पाबंदी पर लबकुशाई की। अदाकारा ने कहा, पाकिस्तानी फनकारों की भारत में पाबंदी ने मुझे गमगीन कर दिया। माहिरा खान ने कहा है कि मैं खुद भारत में काम करने का तजुर्बा हासिल कर चुकी हूँ और मैं समझती हूँ कि न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बरसगीर के फनकारों से एक साथ काम करके अपना तजुर्बा शेयर करने का मौका छीन लिया गया है। अदाकारा ने कहा कि पाकिस्तानी फनकारों की भारत में पाबंदी की वजह से मुझे बहुत सी भारतीय वेब सीरीज में काम करने की हामी नहीं भरी, क्योंकि मुझे इन प्रोजेक्ट्स में काम करने पर खौफ महसूस हो रहा था। वाज़ेह रहे, अदाकारा माहिरा खान ने रोमांस किंग शाहरुख खान के साथ फिल्म रईस के जरिए बॉलीवुड में एंट्री की, जबकि पाकिस्तान में इनकी अदाकार फवाद खान के साथ फिल्म मौला जट्टू मुकम्मल हो चुकी है। ताहम कोरोना के बाइस फिल्म की रिलीज ताखीर का शिकार है। मारूफ अदाकार अदनान सिद्दीकी को माह मुकद्दस रमजान मुबारक की याद आने लगी। अदाकार ने ट्विटर पर अपने मद्दाहों से सवाल किया कि क्या इन्हें भी रमजान मुबारक की याद आ रही है।
पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के मारूफ अदाकार अदनान सिद्दीकी सोशल मीडिया वेबसाइट पर खासे फाल हैं और मुख्तलिफ मामलात से मुतालिक अपने मद्दाहों को आगाह भी करते रहते हैं, साथ साथ इन्हें तफरीह भी फराहम करते हैं। अदाकार ने ट्विटर पर अपने मद्दाहों को सवाल किया कि क्या इन्हें भी रमजान की याद आ रही है। अदाकार ने लिखा कि क्या आप सब भी इफ्तार से पहले वाले जोश और जज्बे को सहरी से कबल खाना खाने समेत भूख से बचने के लिए नींद पूरी करने के तर्ज अमल को याद कर रहे हैं। अदाकार ने ट्वीट के साथ साथ मिसिंग रमजान का हैशटैग भी इस्तेमाल किया। शामिल करेंगे खेलों के मैदान की हलचल BTV स्पोर्ट्स में। रेड लिस्ट में होने के बावजूद पाकिस्तान और भारत की टीमों को इंग्लैंड में दाखिले का परवाना मिल गया। पाकिस्तान टीम को जुलाई में दौरे इंग्लैंड के दौरान 3 वनडे और इतने ही T20 मैचेस खेलना है। भारतीय टीम जून में ICC टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल और अगस्त-सितंबर में मेजबान टीम के खिलाफ 5 टेस्ट मैचेस में हिस्सा लेगी। कोरोना वायरस की मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर इंग्लैंड ने पाकिस्तान और भारत को रेड लिस्ट में शामिल करते हुए सफरी पाबंदियां आयद कर रखी हैं। अलबत्ता अब बरतानवी हुकूमत ने खुसूसी रियायत बरतते हुए दोनों मुल्कों की क्रिकेट टीमों को आने की इजाजत दे दी है। पाकिस्तान और भारत के स्क्वाड्स अपने शेड्यूल के मुताबिक इंग्लैंड पहुंचेंगे। इन्हें करंतना के लिए सरकारी तौर पर मुख्तस किसी मरकज में रखने के बजाय साउथहैम्पटन के एजेस बाउल में ही वाक़ होटल में कयाम की इजाजत दी जाएगी। इस दौरान कोरोना टेस्टिंग का सिलसिला जारी रहेगा। होटल में कयाम से मुतालिक पॉलिसी का इत्तलाक सिर्फ क्रिकेटर्स और मान स्टाफ अरकान पर होगा। फैमिलीज को ये सहूलत हासिल नहीं होगी। अलबत्ता इस ज़मन में कोई हतमी प्रोटोकॉल बनाने के लिए बातचीत चल रही है। हालात बेहतर होने पर अहले खाना को साथ रखने के हवाले कोई रियायत देना मुमकिन होगा। दूसरी जानिब दी 100 लीग में शिरकत के लिए आने वाले पाकिस्तानी, भारतीय और जुनूबी अफ्रीकी क्रिकेटर्स के हवाले से बरतानवी हुकूमत की कोई पॉलिसी वाज़ेह नहीं। याद रहे, कोरोना खतरात के बावजूद इंग्लिश टीम को भरपूर होम सीजन मैसर आ रहा है। पाकिस्तान और भारत से कबल न्यूजीलैंड से होम टेस्ट सीरीज 2 जून से शुरू होगी। श्रीलंका से व्हाइट बॉल मैचेस जून के आखिर और जुलाई के आगाज में शेड्यूल हैं। पाकिस्तान हॉकी टीम के साबिक कप्तान सलमान अकबर का कहना है कि पाकिस्तान से मोहब्बत जाहिर करने के लिए जरूरी नहीं कि वो हॉलैंड में अपना सब कुछ छोड़कर रजाकाराना तौर पर पाकिस्तान हॉकी टीम के साथ काम करने आ जाएं। एशियन गेम्स के गोल्ड विनर गोलकीपर ने कहा कि वो गुज़िश्ता चंद सालों से हॉलैंड में अकेडमी चला रहे हैं और इस अकेडमी के लिए उनके मुख्तलिफ मुआहदे हैं जिनको वो यूं ही छोड़कर नहीं आ सकते। पाकिस्तानी गोलकीपर की मदद को वो बिल्कुल तैयार है, लेकिन हर काम का एक प्रोफेशनल तरीक़ेकार होता है। यूं ही मुंह उठाकर काम नहीं हो जाता। उन्होंने कहा कि ओलंपिक्स हॉकी क्वालिफायर के मैचेस से 1.5 माह कबल आसिफ बाजवा ने इन्हें कॉल की और कहा फ्लाइट पकड़कर पाकिस्तान आ जाओ, जो मुमकिन नहीं था। साबिक गोलकीपर का कहना था कि ये नॉन प्रोफेशनल तरीका होता है कि आप किसी को एक फोन करें और कहीं आ जाएं और उम्मीद रखें कि वो सब कुछ छोड़कर आ जाएगा। ऐसा नहीं होता। सलमान का कहना था कि वो माजी में पाकिस्तान में गोलकीपर्स के लिए क्लिनिक मुनक्किद करने आ चुके हैं और आइंदा भी आएंगे। अगर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को खिदमत दरकार है तो प्लान लेकर बात करें। गोलकीपर्स रातों रात नहीं बन जाते। गोलकीपर्स तैयार करने के लिए एज ग्रुप से तरबियत देना होती है, खिलाड़ी को ग्रूम करना होता है, फिर जाकर वो टॉप लेवल का प्लेयर बनता है। और अब जानते हैं मौसम का हाल BTV वेदर में। शहर कायद में चलती गर्मी दम तोड़ गई। कराची में शदीद गर्मी का जोर टूट गया। शहर में गर्द आलूद हवाएं, कहीं तेज बारिश तो कहीं बूंदाबांदी जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक मौसम अब भी गर्म है। दर्जा हरारत 40.5 डिग्री है। गर्मी के बायस थंडर सेल्स बने हैं। महकमा मौसमियात का कहना है शुमाल मशरिक से हवाएं चल रही हैं। शहर के शुमाली हिस्से में बादल बन रहे हैं। डायरेक्टर महकमा मौसमियात सरदार सरफराज के मुताबिक साइक्लोन से मुतालिक अलर्ट में आंधी का इम्कान जाहिर किया गया। 2-3 घंटे में कराची से बादल गुजर जाएंगे। सरदार सरफराज का कहना है कराची में गर्मी की शिद्दत में कल से कमी आ जाएगी। कराची में तेज बारिश का कोई इम्कान नहीं। समुद्री तूफान और शहर में गर्मी की शिद्दत के बायस बादल बने हैं। गिलगित बल्तिस्तान के जिला हुंजा का 7 माह से बंद शिस्पर ग्लेशियर से पानी का खराज शुरू हो गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक ग्लेशियर से अब तक 4000 क्यूसेक पानी का खराज हो चुका है। डिप्टी कमिश्नर फयाज अहमद के मुताबिक हिफाजती इकदाम कर लिए गए हैं। आबादी को महफूज रखने के लिए हिफाजती दीवार भी बनाकर कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया है। इंतजामिया के मुताबिक अगर पानी का खराज 4000 क्यूसेक से तजावुज कर गया तो सूरत हाल खतरनाक हो सकती है। न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज btv.pk। फॉलो करें हमें इंस्टाग्राम पर btv_pk। इसके अलावा सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।